So again, as I said, there is no concept. Divisibility में कोई concept ही नहीं है. The only concept that you know. तो कैसे सोचें यार? किस तरीके से सोचें? But again, ये idea पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है? तो एक simple problem था. So this concept is called simultaneous concurrences. इससे फायदा क्या होता है? Particularly divisibility वाले problems के अंदर कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखो. So 10 is not a divisor of 4a plus b, but it is a divisor of 4a plus b whole cube. Then you can easily prove this contradiction. Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के कुछ अमेजिंग प्रॉब्लम्स जो आयोक्यम में आने की काबिलियत रखते हैं. राइट, सो डिविजिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरियाज जहां पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं एंड इट इज एसोसिएटेड टू नंबर थ्योरी आल्सो. एंड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिविजिबिलिटी का. राइट, सो द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन. राइट, सो 2 divides 6. A divides B का मतलब पता होना चाहिए कि A divides B का मतलब क्या है. A divides B का मतलब यह है कि A is a factor of B और B is a multiple of A. If this is the thing that you know, you should be logically able to do all the problems, good problems of divisibility. आज हम देखेंगे भी जितने भी प्रॉब्लम्स आज मैं लेकर आया हूँ सारे के सारे नए हैं एंड इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने कभी डिस्कस नहीं किए हुए पहले. सो अगेन दिस इज द आइडिया ऑफ एवरी सेशन ऑफ माइन ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. That is even the students who are associated with us, they should get and keep on getting something new. Okay, so okay, before we start guys, this is an interesting event which is going to be held in Bangalore for Bangalore students. An amazing event is going to happen this Sunday. So the entire team of Vedanta Olympiad School, me, Chetan sir, Rajit sir, everyone, Anirudh sir might not be there because he's on leave, but everyone else will be in Bangalore and will be a part of this math circle. So if you are a mathematics enthusiast in Bangalore and are free on Sunday 10 p.m. to 1:30 p.m. 10:30 to 1, sorry, 10:30 to 1. It is 10 a.m. to 1:30 p.m. It is going to be an amazing event. I can assure you that, and it is going to be you're going to learn a lot of things. ठीक है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से चीजों को देखना होता है. दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू एक्सपीरियंस एंड लर्न. So we are going to have fun activities, puzzles and problem solving. And after that, if you require one-to-one counseling sessions, the career academic path, then also you can stay back. Right, so 26 April कहाँ पर है? VLC, JP Nagar, center of Bangalore. And this is for grade 6 to 12. In fact, even if you're a teacher, you are welcome. Even if you are a math enthusiast working in some corporate, you can come. You can be a part of this event. So this is kind of age independent. Okay, and for this you have to do 2 things. One is fill the Google form which is there in the description, and second, this event is for 99 rupees. This is only to ensure the serious aspirants, and you have to make sure that you complete the payment on the Vedantu link which is also there in the description box. तो ये दोनों चीजें तुम्हें करनी है, and as soon as you do this, our team is going to call you and is going to confirm your seat. All right, so let's move. Make sure you subscribe to this particular channel, and also हमारे जो नए बैचेस हैं लेवल 5 के, लेवल 6 के, लेवल 7 के, लेवल 5 वीकेंड का एक हम नई चीज करने वाले हैं. आयोक्यम वीकडेज 9 PM बैच. ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर वीकडेज के अंदर, नॉर्मल टाइमिंग्स के अंदर हम कहीं जाते हैं, खेलना होता है, ट्यूशंस होती हैं, सो लेट इवनिंग. राइट, सो दिस इज वन बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of April. देयर इज अ फुल मैथ मास्टरी बैच जो स्टार्ट हो रहा है नया. 11th प्लस आयोक्यम स्टार्ट हो रहा है एंड टारगेट ISR स्टार्ट हो रहा है 30th of April से. ये सारे के सारे बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं. So if you are interested, you can be a part of these batches. The links are there in the description box. Okay, and ये हमारे कुछ levels हैं. तो मतलब for the students who do not understand what level 5 is, तो level 5 7th और 8th graders के लिए होता है. Level 6 9th और 10th graders के लिए होता है जो first time Olympiads में घुस रहे हैं. Level 7 if you've completed grade 10th math or you've prepared for IOKM once, then you can be part of level 7, and 8, 9, 10 are restricted levels on the basis of your IOKM RMO in most course. Okay, so this is it. So start करते हैं. So again, as I said, there is no concept. Divisibility में कोई concept ही नहीं है. The only concept that you know that is there in divisibility is already what you know. ठीक है. So if let's say A divides B, so that means A is a factor of B. So this is the only concept of divisibility. This is the best part of divisibility. The only concept of divisibility is this. ठीक है. And दूसरा है, अगर A और B दोनों पॉजिटिव है, then A is less than equal to B.
ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a is always less than equal absolute value of b if a divides b. So these are the only two concepts and nothing else is there. इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या दिया है, x y z t are positive integers, x y z and t are positive integers such that this is a complicated thing. Okay, 68 into x y z t plus x y plus z t plus x t plus 1 is 157 times y z t plus y plus t. लेट मी एक बार चेक कर लो भाई, हाँ 157 है। तो हमें x इंटू वाई इंटू जेड इंटू टी बताना क्या होगा, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस इन इक्वेशन अगेन, 68 टाइम्स x y z t प्लस x y प्लस z t प्लस x t प्लस 1 is 157 times y z t plus y plus t. In fact, this problem, no, ये जो problem है, this is inspired from IOCM 2025 problem. So this is inspired from IOCM 2025 problem, which was in the new paper, region 4 and 5. Right, so new paper, तो उनमें से एक problem इस तरीके का था, तो that is this is inspired from this. तो कैसे सोचें यार, किस तरीके से सोचें? सो वन थिंग जो समझ में आ रहा है कि ये है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उसको डिवाइड कर दो। सो एक्स वाई जेड टी प्लस एक्स वाई प्लस जेड टी प्लस एक्स टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई जेड टी प्लस वाई प्लस टी इज 157 बाय 68। ये आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स वाई और जेड टी निकालना है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड एंड टी आर इंटीजर्स, एक्स वाई जेड टी इंटीजर्स है। अच्छा, यहां पर देखते हैं, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। वाई जेड टी, यहां पर वाई जेड टी है विद एक्स, वाई है यहां पर एक्स वाई है, टी है यहां पर टी एक्स है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये जो तीन टर्म्स हैं, दीज आर द थ्री टर्म्स, ये वाली और ये वाली, जो एग्जैक्टली ये है, बस एक्स साथ में है। तो बेसिकली अगर मैं इनसे एक्स कॉमन ले लेता हूं, वाई जेड टी प्लस वाई प्लस टी प्लस बचा क्या, ये दो टर्म्स बचेंगे, जेड टी प्लस 1 अपॉन वाई जेड टी प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूं पहले। लेट्स सी इफ आई कैन सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड टू अ ग्रेट लेंथ। राइट हैंड साइड फ्रैक्शन को बाद में देखेंगे। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं अलग अलग करूं, एक्स अलग हो जाएगा, ये जेड टी प्लस 1 अपॉन वाई जेड टी प्लस वाई प्लस टी। बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नीचे वाला पार्ट हैवी है, ऊपर वाला कम है। जेड टी के साथ वाई 1 है, वाई के साथ है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये सेम एग्जैक्टली वही है, ये दो टर्म्स के साथ बस वाई लगा हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन डू दिस, दोनों तरफ जेड टी बाय 1 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे जेड टी प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, सो 1 अपॉन, तो अगर मैं जेड टी प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो वाई कॉमन जेड टी प्लस 1 प्लस टी अपॉन जेड टी प्लस। So this is x plus 1 upon y plus t upon zt plus 1, समझ रहे हैं? t upon zt plus 1। सेम चीज दोबारा से करते हैं, ऊपर नीचे यहां पे t से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x plus 1 upon y plus 1 upon, जब मैं जैसे ही t से डिवाइड करूंगा z plus 1 by t, x plus 1 upon y plus 1 upon z plus 1 by t. So this is what it became. ये बन गया। और x y z t क्या है, इंटीजर्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि यार अल्टीमेटली ये कुछ भी नहीं है। ये जो चीज होती है ना, जब x y z t इंटीजर्स है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलो x एक इंटीजर है प्लस 1 अपॉन समथिंग और y z t भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो बोल सकते हैं कि यार ये x क्या है, x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो है ये ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सिमिलरली मुझे ये नंबर है ना, इसको भी इसी फॉर्म में करना है। तो इसको मैंने सोचा 68 इंटू 2, 68 इंटू 2 कितना होगा, सो दिस इज 2 प्लस, तो 68 टाइम्स 2 136, तो 157 माइनस 136 157 माइनस 136 कितना हुआ, दिस इज 21, सो दिस इज 2 प्लस 21 बाय 68। ठीक है, तो मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूं। So 2
सो दिस इज 2 प्लस 21/68. ठीक है, इसको 1 अपॉन समथिंग में लेता हूं, तो 2 प्लस 1 अपॉन 68/21. 2 अप प्लस, so 2 plus 1 upon 21, 3 is 63, so 3 plus 5/21. देख रहे हो, तो मैं बस इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में डालने की कोशिश कर रहा हूं. सो अगेन सेम चीज, इस चीज को क्या लिखेंगे, इस चीज को लिख पाएंगे, इस चीज को लिख पाएंगे 1 अपॉन 21/5, सो 1 अपॉन 4 प्लस 1/5. सो ओवरऑल ये जो चीज है ये क्या है, दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1/5. ये है. अगर मैं कंपेयर करूं तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, z का वैल्यू 4 हो गया, t का वैल्यू 5 हो गया. x इंटू वाई इंटू जेड इंटू टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. तो 6 इंटू 20 इज 120. So 120 is going to be the right answer to this. 120 is going to be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. ठीक है, so 120 is the right answer. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें डिविजिबिलिटी का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा नहीं. द कॉन्सेप्ट वाज सीइंग दैट ये जो चीज है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में जा रही है, जाती जा रही है. इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ प्रॉब्लम लाइक दिस इन IOCM 2025 रीजन 4 रीजन 5. आई फॉरगॉटन द क्वेश्चन नंबर, बट इसी स्ट्रक्चर में ये नॉट इसी स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर में, इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया था. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम. ठीक है, मजा आया, लाइक कर देना भाई. चलो अगला प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट, वेरी गुड प्रॉब्लम. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ smallest possible value of positive integer n. Find the smallest possible value of positive integer n such that one of the digits of 21, 25 n plus 3 is equal to 9. Find the smallest possible value of n such that one of the digits of this particular number 125 times n plus 3 is 9. ठीक है, एक नंबर इसका 9 होना चाहिए. देखते हैं कुछ हो रहा है. अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो 128 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है. यहाँ पे n को 2 पुट करता हूं, 250 प्लस 3 इज 253. n को 3 पुट करता हूं तो 375 प्लस 3 इज 378. n को 4 पुट करता हूं तो 503 आ रहा है. n को 5 पुट करता हूं तो 625, 628. n को 6 पुट करता हूं, n को 6 पुट करते हैं, देन 753. n को 7 पुट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी 875 प्लस 3, 878. n को 8 पुट करते हैं, 1003. तो भाई 8 तक तो नहीं आ रहा, 8 तक तो नहीं आया. ठीक है, अगर देखना है तो कुछ पैटर्न अगर बनाना है तो शायद उसके आगे n को 9 पुट करके देख लो, इसमें 125 ऐड करो तो 128, 128. n को 10 पुट करोगे, इसमें 125 और ऐड करना पड़ेगा, 125 ऐड करोगे तो 1253 हो जाएगा. तो यही चलता रहेगा. वैसे तो यही से ही आंसर दिखने लग जाएगा. ठीक है, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, इसके बाद ना, यहां से इसके बाद द थिंग्स आर गोइंग टू बी रेपिटेटिव इन नेचर. ठीक है, यहां से इसके बाद द थिंग्स आर गोइंग टू बी रेपिटेटिव इन नेचर. तुम यहां पे n = 0 भी लिख सकते हो. सो n = 0, so it is 0 0 0 3, 0 0 0 3, 0 0 0 3, 0. तो ये 8 के बाद ना ये रिपीट होना शुरू हो रहा है. 0 0 0 3, 128, 253, इसके बाद 1 0 0 3, 1 1 2 8, 1 2 5 3, ये 1 8 7 8 तक जाएगा, फिर 2 0 0 3 तक जाएगा. ठीक है, तो यहां से देखना यार, इनमें तो कभी भी 9 नहीं आ रहा. 9 कहां आएगा, 9 0 0 3 पे जाएगा. दिखाई दे रहा है 9 कहां आएगा, 9 0 0 3. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, राइट. सो दिस इज अप्रोच 1. तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्राई टू सी अ पैटर्न, ट्राई टू सी अ पैटर्न. हमने देखा कि 0 0 0 3 है, तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न दिख गया. अब कुछ बच्चे क्या होंगे, यहां तक हार मान लेंगे कि यार ये तो आ नहीं रहा, तो कुछ और सोचते हैं. ठीक है, यहां तक हार मान लेंगे. ठीक है, अगर तुमने पहले ही हार मान ली, देन अगेन देयर इज सम आइडिया व्हिच शुड कम टू योर माइंड.
ठीक है, किसी को यहाँ पे कैसे सपना आएगा कि यार यहाँ से बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें 125 के मल्टीपल अच्छे तरीके से पता है, देन यू वुड नो कि यार ये रेपिटेशन होगा। पर अगर नहीं पता तो देन यू वुड नॉट नो कि किस तरीके से होगा। तुम यहां तक देखोगे हो नहीं रहा, तुम कहां चेक करोगे 6 7 8, यू नो। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि 0003 के बाद अगली बार 1003 आता है, फिर 2003 आएगा, 3003 आएगा, 4003 आएगा, फिर आगे जाके 9003 आएगा। सो दिस इज वेयर द फर्स्ट टाइम 9 इज गोइंग टू अपीयर, अदरवाइज यहाँ पे कभी भी 9 नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम 990 पे आएगा। देख लो ये कौन सी टर्म है, दिस प्लस 3 इज दिस, तो एन का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट इज अप्रोच टू, अगर ये समझ नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी अप्रोच टू, ठीक है। एंड हो सकता है कि किसी तरह के प्रॉब्लम के अंदर इस तरह का पैटर्न भी नजर ना आए, तो इसको इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरीके से करना है। सो अगेन द फैक्ट दैट 125 इज अ डिवाइजर ऑफ 1000 helps a lot. 125n प्लस 3 को लिख सकते हैं 1000 इंटू n बाई 8 प्लस 3, 1000 इंटू n बाई 8 प्लस 3। तो यहां से भी सेम चीज दिखने वाली है। देखो 1 बाई 8 जो होगा ना, 1 बाई 8 है 0.125, 2 बाई 8 is 0.25, 3 by 8 0.375, 4 by 8 0.5, 5 by 8 0.625, 6 by 8 0.75, 7 by 8 0.875। ये है, ठीक है। तो अगर मैं 1 by 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 125 आएगा, 2 by 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 250 आएगा, 3 by 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 375 आएगा, 4 by 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 500 आएगा, 5 by 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 625, 750, 875। ये सब वैल्यूज आ रही है और इसमें कहीं पर भी 9 नहीं आ रहा है। प्लस 3 भी करना है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में सबके 3 ऐड होगा, तो दैट इज अनदर पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर मैं यहां पर n, अब तुम बोलोगे सर ये तो 1 के लिए है, 11 के लिए तो नहीं है। अगर मैं इनको 11 भी रखता हूं, लेट्स से n इज 11, सो ये क्या है 1000 इंटू 11 बाई 8 प्लस 3 है। 11 बाई 8 को ना मैं मिक्स फ्रैक्शन में डालूंगा, सो दिस इज 1 प्लस 3 बाई 8 प्लस 3, सो दिस इज 1000 प्लस 3 बाई 8 इंटू 1000 प्लस 3, ठीक है। 1000 प्लस 3 बाई 1000 प्लस, अब 3 बाई 8 है ये, तो 3 बाई 8 इंटू 1000 जो होगा ना, ये 375 प्लस 3 378 होगा, तो ये 378 होगा, इसमें 1000 ऐड कर दो तो 1378 है, सो दिस इज 1378। तो यहां से दिखा दे रहा है सिंस इसमें कहीं पर भी 9 नहीं है, इस जगह कहीं पर भी 9 नहीं है, देयर इज नो 9 है, यहां पर कहीं पर भी 9 नहीं है। तो ऑफ कोर्स प्लस 3 भी जब करेंगे, जब दिस इंटू 1000 प्लस 3 करेंगे, वहां पे भी 9 नहीं आएगा, बिकॉज 5 प्लस 3 8 है, यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 प्लस 3 3 होगा, ठीक है। तो 0 प्लस 3 3 है, 5 प्लस 3 8 है, तो या तो 0 है या 5 है, तो कहीं पर भी 9 नहीं आ रहा है, ये हमें डेफिनेटली क्लियर है। तो 9 जनरेट करने का क्या तरीका है? 9 जनरेट करने का तरीका देखो, यहां से तो कभी 9 इस वाले पार्ट से 9 तो नहीं आएगा कभी। तो 9 जनरेट करने का तरीका क्या है कि यार ये जो नंबर है ना, ये 9 रख दो, ये 9 करो। बेसिकली अगर n के अंदर n बाय 8 के अंदर 9 आ जाता है, इफ n बाय 8 के अंदर, देखो 1000 बाय 8 में, इसमें तो कभी भी 9 नहीं आ रहा, इसमें तो कभी भी 9 नहीं आ रहा। अगर मैं n बाय 8 के अंदर 9 जनरेट कर दूं, ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट को, ये जो है ना, इसको 9 लिख दो, तब बात बन जाएगी। इसको 9 लिख दो, बिकॉज क्या हो जाएगा 9000 प्लस समथिंग, समथिंग का क्या लेना देना, समथिंग में तो कभी भी 9 नहीं आने वाला, इस समथिंग में कभी भी 9 नहीं आने वाला, बिकॉज ये हमने देख लिया, इसमें दिस इंटू 1000 प्लस 3 करेंगे तो कभी भी 9 नहीं आ रहा। 9 अगर आएगा तो यहां पे 1000 इंटू ये वाले पार्ट में आएगा, ये वाले पार्ट में। तो मेरे को n ऐसा करना है कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 9 हो जाए। सो 8 का ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढो जहां पे n अपॉन 8 9 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है। जो पहला मल्टीपल आ रहा है वो 72 आ रहा है, ठीक है। तो n को अगर मैं 72 रखता हूं, तो अब देखो n को जब मैं 72 रखता हूं तो 72 बाय 9, 72 बाय 8 9 हो गया, 9000 प्लस 3 इज 9003, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है।
सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट हमने इसको किस तरीके से किया, इस तरीके से किया, तो ये एक अच्छा आइडिया है जिसको तुम दिमाग में रख सकते हो और यूज कर सकते हो। हालांकि अगर ये वाला प्रॉब्लम आता तो मैं इसको ऐसे ही करता, ठीक है, मैं इसको पैटर्न वाइज ही करता, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू इट। बट अगेन ये आइडिया पता होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है ना वो, ठीक है। अगर ये आइडिया पता है तो मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें अब ये करना चाहिए, सिंस तुम्हें ये आइडिया आ गया, कोशिश करना अपने आप टू फ्रेम अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस आइडिया। इस आइडिया के ऊपर कोई एक नया प्रॉब्लम फ्रेम करने की कोशिश करो, एंड देखते हैं कि कितने बढ़िया प्रॉब्लम्स आते हैं। यू कैन पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, ये एक इजी प्रॉब्लम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that 25 divides n plus 3 and 49 divides n plus 8. So 25 divides n plus 3 and at the same time 49 divides n plus 8. 25 divides n plus 3, 49 divides n plus 8. n सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालने की कोशिश करनी है। इसका बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दिस। मेथड 1 है एपी। देखो, n plus 3 is a multiple of 25, so n plus 3 is 25a and n plus 8 is 49b. n plus 8 is a multiple of 49. तो यहां से n क्या आ गया, n is 25a minus 3 and n is also equal to 49b minus 8. तो ऊपर वाली जो चीज है ना, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऊपर वाली चीज एपी है, 25a minus 3 is an AP and 49b minus 8 is also an AP, and all I want to do is find the common terms of this AP. But again, इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कॉमन टर्म का ही सबसे छोटा वैल्यू बताना है, राइट। सो तुम लिखते रहोगे तो हो सकता है कि बहुत एंड में जाके कुछ कॉमन मिलेगा तो सही, ठीक है। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। इनफैक्ट इसी को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, दूसरा मेथड इज कॉन्ग्रेंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस हम इस सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहां देखो, n ये दोनों बराबर है, तो 25a minus 3 is 49b minus 8. 25a plus 5 is 49b. 25a plus 5 is 49. तो इस तरह से एक लीनियर रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स a के साथ 25 है, b के साथ 49 है, तो जो भी छोटा नंबर है ना, या कोई भी फर्क नहीं पड़ता 25, बट कोशिश करो छोटे नंबर का मॉड ले लो दोनों तरफ। यहाँ पे 25 है, तो टेकिंग मॉड 25 बोथ साइड्स, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 49 हो गया -1 मॉड 25, सो b इज -5 मॉड 25, b इज -5 मॉड 25। इसका मतलब b क्या है, b इज 25 के -5, b इज 25 के -5, b 25 के -5 है, यहां पुट कर दो, हो गया। सो इसका मतलब n plus 8 which is 49b, which is 49 into b is 25k minus 5, so n हो जाएगा 49 into 25k minus 49 into 5 minus 8, ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। हमें क्या करना है, हमें n मिनिमम चाहिए, मिनिमम। सो n मिनिमम के लिए k को 1 पुट कर दो, सो 49 into 25 minus 49 into 5 minus 8, so 49 into 20 minus 8, so 980 minus 8 972, so 972 is going to be the right answer to this, ठीक है। तुम चेक वेरीफाई भी कर सकते हो, 972 प्लस 3 975 हो गया, इससे मल्टीपल, एंड 972 प्लस 8 कितना हो गया, 980, वो 49 का मल्टीपल है, वो 49 का मल्टीपल है, ठीक है जी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम था, बट ये
पता होना चाहिए। तो इसको जो चीज है ना, ये दिस कॉन्सेप्ट, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस। साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस, इनको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी 972। चलो जी, नेक्स्ट, दिस इज अगेन एन इजी प्रॉब्लम। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 19। सो n है and it is given that sum of the digits of n is 19 and number is divisible by 11, 11 divides n. So these are the two conditions and three in fact. हमें n smallest निकालना है, सबसे छोटा निकालना है such that sum of the digits of n is 19 and also 11 divides n. n is divisible by 11, n is a multiple of 11. क्या करें? सही है। अब स्मॉलेस्ट से सबसे पहली चीज देखो, 11 की डिविजिबिलिटी रूल है, तो ये तो मुझे पता है कि ऑल्टरनेट चल रहा है, a minus b plus c minus d should be a multiple of 11 and so on. But since it is asking smallest positive, तो पहली चीज जो है मेरे दिमाग में कि यार कौन से डिजिट, कितने डिजिट्स होंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर गोइंग टू बी देयर। ये मैं लॉजिकली बता सकता हूं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ 2 डिजिट और 1 डिजिट। Why? Because of this condition. Sum of the digits 19. अगर 2 डिजिट्स है, नंबर है, तो मैक्सिमम सम 18 होगा, 19 नहीं होगा। So इसका मतलब अगर स्मॉलेस्ट n है दैट हैज टू बी 3 डिजिट, मिनिमम 3 डिजिट तो होंगे होंगे। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। सो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 19 है एंड एट द सेम टाइम a माइनस बी प्लस सी इज 11 के। a माइनस बी प्लस सी इज 11 के। 11 के, ठीक है। 11 के मतलब ये 0, 11, 22 ये सब हो सकता है। 0, 11 के 22, 22 हो नहीं सकता बिकॉज 2 डिजिट्स का सम माइनस तीसरा डिजिट कैन नॉट बी 22, इट कैन बी। सो a प्लस c माइनस b जो है या तो 0 होगा या फिर 11 होगा, 0 होगा 11 होगा, ठीक है। तो यहां पे a माइनस बी प्लस सी या तो 0 है या फिर 11। 3 नंबर्स का सम ऑड है, तो 3 नंबर्स का सम डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता, पैरिटी का बेसिक रूल बोलता है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी अगर 19 है, a माइनस बी प्लस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a प्लस बी प्लस सी ऑड है, किसी भी कॉम्बिनेशन में a b c को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल आल्सो बी ऑड, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो 11 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b इज 8, b4 हो गया, b4 है तो a प्लस सी 15 है, a प्लस सी 15 है, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। एक पॉसिबिलिटी 6 9 की है, 7 8 की है, 8 7 की है, 6 9 6 की है, ये 4 पॉसिबिलिटी। सिंस स्मॉलेस्ट चाहिए तो a सबसे छोटा होना चाहिए, तो 649, 649 is the smallest number whose sum is 19 and is divisible by 11 also. 649 is the smallest number which is whose sum is 19 and is divisible by 11 also. I hope this is clear everyone. ठीक है, सो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर प्रॉब्लम था, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, सो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 से बड़े हैं, such that c plus 1 divides a plus b, a plus 1 divides b plus c and b plus 1 divides c plus a. So symmetric type का एक्सप्रेशन है। Find the greatest possible value of a plus b plus c. a plus b plus c की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है, वो हमें बतानी है। It's an amazing problem. a b c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तीनों 1 से बड़े हैं। a plus 1 divides b plus c, b plus 1 divides c plus a, at the same time c plus 1 divides a plus b. a प्लस बी प्लस सी की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर ना हम कोशिश करते हैं, हमेशा हमें फायदा होता है व्हेन वी एज्यूम
बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक इन नेचर, दिख रहा है, ए बी सी या सिमेट्रिक इन नेचर। जब मैं ए और बी को एक्सचेंज कर देता हूं तो इक्वेशंस के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी और सी को जब मैं साइक्लिकली रोटेट करता हूं, एक्सचेंज करता हूं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक कुछ फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ए बी सी का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। लेट कुछ भी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, एंड तीनों 1 से बड़े हैं दिया हुआ है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि बहुत बार ना ये ऑर्डर डिसाइड करने से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, सिंप्लीफाई होती है। तो मान लेते हैं कि a सबसे बड़ा है, उसके बाद b आता है, उसके बाद c आता है। तो अगर इससे मुझे कोई भी आंसर मिल जाएगा ना, उसको मैं साइक्लिकली रोटेट कर सकता हूं। आई कैन ऑलवेज रोटेट दिस साइक्लिकली, समझ आ रही है, बिकॉज जो इक्वेशन है वो साइक्लिक इक्वेशन, सिमेट्रिक इक्वेशन भी है। सो आई कैन ऑलवेज रोटेट इट साइक्लिकली। तो अगर मेरे को एक भी सोल्यूशन मिल गया तो उसके मैं रोटेट करके बाकी सोल्यूशन में निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है। इससे फायदा क्या होता है, पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स के अंदर कहां से शुरू करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा नंबर ए है, ये ए सबसे बड़ा, इसका मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ी चीज ये होगी। तो यहां से ना हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सिंस ए सबसे बड़ा है तो कहना से a प्लस 1 डिवाइड b प्लस सी, यहां से शुरू करते हैं कुछ। a सबसे बड़ा है, a प्लस बी, सो मेरे को यहां से कैसे मिलेगा यार, देखो a सबसे बड़ा है b प्लस सी से, तो ये डिवाइजर भी है, और हमें पता है कि डिवाइजर हमेशा इससे छोटा होता है। तो यहां से कुछ ना कुछ निकालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, कहना से b प्लस सी जो है, सो b प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ a प्लस 1। b प्लस सी क्या है, a प्लस 1 का मल्टीपल है। b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या, कहना से b प्लस सी जो है, जो b प्लस सी है वो a प्लस ए से कम है, b भी a से कम है, c भी a से कम है। सो बेसिकली ये 2a से कम है। 2a से कम है, अच्छा 2a से कम है तो बोल सकते हैं 2a प्लस 2 से भी कम होगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स a प्लस 1, 2 टाइम्स a प्लस 1। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि b प्लस सी जो है ना, देखो ध्यान से, b प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ a प्लस 1, इज अ मल्टीपल ऑफ a प्लस 1, बट लेस देन ट्वाइस ऑफ a प्लस 1। भाई b प्लस सी a प्लस 1 का तो मल्टीपल है, वो तो कंडीशन बोलती है, बट हमने क्या किया, इस तरीका से ये प्रूव कर दिया कि वो a प्लस 1 का मल्टीपल है, बट ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 से छोटा है, और स्ट्रिक्टली छोटा है, बिकॉज यहां पे प्लस 2 हमने जब किया था स्ट्रिक्टली छोटा हो गया। अरे बात समझ में। सो b जो है वो a से छोटा है, c भी a से छोटा है, तो हमने यहाँ पे a की फॉर्म में बनानी, ये 2a हो गया, मैंने 2a प्लस 2 कर दिया, लेस देन 2a प्लस 2, ट्वाइस ऑफ a प्लस 1। सो b प्लस सी ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 से छोटा है, बट a प्लस 1 का मल्टीपल है। तो अगर हम बोलो यार एक नंबर है a, लेट्स से 5 से 5 का मल्टीपल है, एक नंबर 5 का मल्टीपल है, बट 5 का जो सेकंड मल्टीपल है 10 से, उससे छोटा है। एक नंबर 5 का मल्टीपल है, बट 5 का जो सेकंड मल्टीपल है उससे छोटा है। एक नंबर a प्लस 1 का मल्टीपल है, बट इसका जो सेकंड मल्टीपल है उससे छोटा है, और स्ट्रिक्टली छोटा है। तो बोल सकते हैं यहां से बहुत क्लियर है, क्या क्लियर है, कि b प्लस सी का वैल्यू a प्लस 1 होगा। भाई सेकंड मल्टीपल से छोटा है, ये नंबर इसके सेकंड नंबर से छोटा है, सेकंड मल्टीपल से छोटा है, और इसका मल्टीपल है, तो भाई यही तो होगा, दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडिंग। तो हमने इस कंडीशन के साथ बाउंड कर दिया, बड़ी वैल्यू निकाली, बाउंड कर दिया, आगे की तरफ बड़ी वैल्यू निकाली, बाउंड कर दिया, सो इसको बोलते हैं बाउंडिंग। अरे बात समझ में, यहां से ये चीज आ गई। देखते हैं दूसरे से कुछ मिलता है, दूसरी कंडीशन से कुछ मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, छोटा सा उससे सेकंड वाली निकालो, b प्लस 1, b प्लस 1 डिवाइड c प्लस है, b प्लस 1 डिवाइड, मैं ये भी यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज दिस ऑल्सो। सो b प्लस 1 डिवाइड c प्लस है, तो यहां पर या तो c की वैल्यू हटा दो या a की वैल्यू हटा दो, यहां से a निकाल लेते हैं। चलो a कितना हो गया, b प्लस सी माइनस 1, सो b प्लस 1 डिवाइड्स c प्लस b प्लस c माइनस 1। सो b प्लस 1 इसको डिवाइड करता है, b प्लस 1 इसको डिवाइड करता है,
ठीक है, b प्लस वन डिवाइड्स 2c प्लस b माइनस वन। यहां पर सेम चीज लगाने की कोशिश करते हैं जो यहां पे सी की थी हमने। c जो है वो b से छोटा है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2b प्लस b माइनस वन, विच इज 3b माइनस वन। मुझे क्या 3b प्लस वन चाहिए, 3b प्लस वन, 3b प्लस 3 बेसिकली। सो कैन से दिस इज लेस देन 3b माइनस वन प्लस 4, विच इज इक्वल टू 3b प्लस 3, थ्राइस ऑफ b प्लस वन। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर इसका तो मल्टीपल है, ये नंबर इसका तो मल्टीपल है, बट 3 टाइम्स b प्लस वन से छोटा है। ये नंबर इसका तो मल्टीपल है बट इसके तीसरे मल्टीपल से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर, दिस नंबर 2c प्लस b माइनस वन, या तो ये b प्लस वन के बराबर है, या 2c प्लस b माइनस वन ये ट्वाइस ऑफ b प्लस वन के बराबर। सो वन ऑफ दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम चीज जो यहां पर की थी, दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, बट हमने बाउंडिंग से प्रूव कर दिया कि ये जो चीज है ये थ्राइस ऑफ b प्लस वन से छोटी है। ठीक है, इसका मल्टीपल है बट तीन, उसके तीन गुना। कोई नंबर 5 का मल्टीपल है बट 15 से छोटा है। कोई नंबर 5 से का मल्टीपल है बट 15 से छोटा है, इसका मतलब नंबर यहाँ 5 होगा या 10 होगा। तो नंबर या तो ये होगा या इसका ट्वाइस होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस कैंसल्स, 2c का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। अच्छा, क्या दिया हुआ है, तीनों नंबर्स 1 से बड़े हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, तो दिस केस इज गॉन, केस ही गॉन। दूसरा क्या बचा, ये वाला। सो 2c प्लस b माइनस वन इज इक्वल टू 2b प्लस 2। तो यहां से b इज इक्वल टू 2c माइनस 3। b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c आ गया, यहां पे a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ bc, इनफैक्ट यहां पे b की वैल्यू पुट कर दो, 2c माइनस 3 प्लस c माइनस 1, सो दिस इज 3c माइनस 1। सो a भी इन टर्म्स ऑफ c आ गया, b भी इन टर्म्स ऑफ c आ गया। ठीक है, तो क्वाइट अ प्रोग्रेस आई वुड से, a इन टर्म्स ऑफ c, b इन टर्म्स ऑफ c, ये दोनों आ गए। ठीक है, रिलेशन आ गया। अब तीसरी चीज जो हमने यूज नहीं की वो कर लेते हैं, वो है तीसरी वाली। तो वी ऑल्सो नो दैट c प्लस वन डिवाइड्स a प्लस b, c प्लस वन डिवाइड्स a प्लस b, a है 3c माइनस 4 प्लस 2c माइनस 3, c प्लस वन डिवाइड्स 5c माइनस 7, c प्लस वन डिवाइड दिस। अब अगेन नॉर्मल डिविजिबिलिटी के रूल्स, c प्लस वन डिवाइड्स 5c प्लस 5 माइनस 12। 5c प्लस 5 क्यों किया? दिस बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि 5c प्लस 5 माइनस 12 अपॉन c प्लस 1, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो पहले वाले पार्ट को अलग कर सकता हूं मैं, ये वाला पार्ट तो इससे डिविजिबल है, इसका मतलब c प्लस वन डिवाइड्स माइनस 12। यहां से भी दिखाई दे रहा है, दिस बिकम्स 5 माइनस 12 अपॉन c प्लस 1, ये एक इंटीजर है, 5 ऑलरेडी इंटीजर है, तो मतलब ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। तो c प्लस वन डिवाइड्स 12, c प्लस वन डिवाइड्स 12, दिस इज द ओनली कंडीशन वी गॉट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन से क्या है, ये वाला आ गया a 3c माइनस 4, दूसरी से b 2c माइनस 3, सो a और b इन टर्म्स ऑफ c आ गए, और c जो है c प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ 12। अच्छा, क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। यहां पे दिखाई दे रहा है c बढ़ेगा तो b बढ़ेगा, c बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, तो यहां से c को बढ़ा दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c निकालना है। इनफैक्ट तुम यहां पे ये भी भर सकते हो, a का वैल्यू कितना है 3c माइनस 4, b का वैल्यू 2c माइनस 3 प्लस c, तो 6c माइनस 7, ये निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, c मैक्सिमम होगा, c प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ 12, इसका मतलब c प्लस वन इज अ मैक्सिमम फैक्टर ऑफ 12, तो c हैज टू बी 11। c अगर 11 है तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 11 माइनस 7, 6 से 6 माइनस 7 इज 59। So 59 is going to be the right answer. 59 is going to be the right answer to this. I hope this is clear. तो यहां पे सब कुछ था, क्या क्या था, यहां पे हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी समझा क्या होता है, किस तरीके से लगाते हैं, यहां पे हमने बाउंडिंग समझा, बाउंडिंग का
अफेक्ट कब लगाते हैं, कब लगा सकते हैं, जब सिमेट्रिक हो चीजें। तो चीजें यहाँ पे सिमेट्रिक थी, लगा दिया हमने, ठीक है। एंड बाउंडिंग का पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी में क्या फायदा होता है कि यार अगर डिवाइजर है और अगर डिवाइजर बड़ा है तो काफी आसानी से चीजें आ जाएंगी। डिवाइजर बड़ा दिख रहा है, ए बी से बड़ा है, बी से सी से बड़ा है, तो दिखाई दे रहा था कि यार इस यहाँ पे बाउंडिंग लगा के चीजें बढ़िया हो जाएंगी, मस्त आ जाएंगी, आगे फिर डिविजिबिलिटी के रूल्स लगा दिए, ठीक है, सब कुछ लग गया इस प्रॉब्लम के अंदर, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम एंड होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो जी, लेट्स डू दिस। ए एंड बी, A and B are positive integers such that 80 divides this expression. 80 144a cube minus 32a square b plus 92ab square plus b cube को डिवाइड करता। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 16a square plus b square. इसकी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू बतानी है। दिस इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार ये जो चीज है ना, बहुत ही हैफाजत सा एक्सप्रेशन है। 144a क्यूब 32a स्क्वायर बी 92ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, बहुत ही रैंडम सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है अभी। सो 144a क्यूब माइनस 32a स्क्वायर बी प्लस 92ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो दिस इज सीमिंग टू बी अ वेरी हैफाजत, वेरी रैंडम एक्सप्रेशन एंड मुझे इसको 80 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो 80 इज अ वेरी गुड हिंट, 80 सबसे बढ़िया हिंट है। तो 80 से छोड़ तोड़ते हैं इसको, 80 से इसको तोड़ा जाता है, इसको लगता है 80a क्यूब प्लस कितना बचा 64a क्यूब, ठीक है, इसको तोड़ दिया पहले तो, ठीक है, ये प्लस वाला है, इसको तोड़ते हैं। ये क्या करेंगे हम 80ab स्क्वायर प्लस कितना रहेगा 12ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड ये तो माइनस 32a स्क्वायर भी है। अब इसको तोड़ना नहीं आ रहा, कैसे तोड़ें? 80 माइनस वो 50 वाला करें या कुछ और करें, 80 माइनस 48 करें या 80 और ऐड कर दें, वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुछ कुछ अलग करते हैं पहले तो चीजें। ये तो 80a क्यूब हो गया, ये तो 80 से डिविजिबल है, 80a स्क्वायर भी हो गया, ये भी 80 से डिविजिबल है, ठीक है। जो बाकी चीज बची वो अलग कर देते हैं। 64a क्यूब, इसको मैं 4a होल क्यूब लिख सकता हूं, b क्यूब, बहुत बढ़िया। तो यहां पे दिखाई दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस 4a इंटू बी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू भी आ गया। तो बचा कौन सा वैल्यू? ये वाला बचा, 4a का होल स्क्वायर इंटू बी, ये बचा, ठीक है, ये बचा। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है अपने आप, ये क्या चीज है 48a स्क्वायर बी, बट हमारे पास कितना था माइनस 32a स्क्वायर बी, मुझे प्लस 48 चाहिए, बन गया ना ये। तो माइनस 32 जो है ना वो क्या है माइनस 80 प्लस 48। सो बढ़िया हो गया, यहाँ पे माइनस 80 आ गया ए स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस 48 ए स्क्वायर बी, अपने आप चीजें अलाइन हो गई, अपने आप चीजें। तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट इन द डायरेक्शन, अगर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ ना अपने आप चीजें बनेंगी, अपने आप चीजें बनेंगी, ठीक है। तो 32 का दिक्कत आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि 32 में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, दोनों चीजें हो सकती थी। तो मैंने देखा बाकी चीजों को देख लेते हैं, 4a का होल क्यूब है, b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये बन गया। ये चीज चाहिए। अब ये चीज है 48 ए स्क्वायर बी, इसको कैसे स्प्लिट करूंगा प्लस 48 में, तो माइनस 80 प्लस 48 ए स्क्वायर बी, और 80 अपने आप अलाइन हुई। सो अगर सो अगेन दिस अपॉन 80 इज एन इंटीजर, 80 डिवाइड दिस, सो 80 इज ऑलरेडी डिवाइडिंग दिस, पहली बात तो इसका मतलब 80 डिवाइड्स ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है 4a प्लस बी होल क्यूब। 80 डिवाइड्स 4a प्लस बी होल क्यूब, ये होगा, ठीक है। सो 80 डिवाइड्स 4a प्लस बी होल क्यूब। अब सोच के बताओ किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जा सकता है। 80 डिवाइड्स 4a प्लस बी होल क्यूब अगर है, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। सो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी गॉट।
80 डिवाइड्स 4a प्लस बी होल क्यूब ऑलरेडी आ चुका है। अब हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करें? 80 इसको डिवाइड कर रहा है, 80 इसको डिवाइड कर रहा है, सॉरी, दिस इज डिविजिबल बाय 80, दिस इज डिविजिबल बाय 80। इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो सोच के देखो यार, अब 80 क्यूब है, देखो ये मुझे पता है डिविजिबिलिटी के अंदर, दैट इफ a क्यूब डिवाइड्स b क्यूब, दैट मीन्स a डिवाइड्स b। ठीक है, तो अगर a क्यूब b क्यूब को डिवाइड करता है, a क्यूब b क्यूब को डिवाइड करता है, देन a ऑल्सो डिवाइड्स b। यहां पर मैं किस तरीके से करूंगा? यहां पे क्यूब तो नहीं है, दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज नॉट अ क्यूब। सो 80 अगर 4a प्लस बी होल क्यूब को डिवाइड करता है तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेफिनेटली, क्या बोल सकता हूं? डेफिनेटली क्या बोल सकता हूं? देखो 80 डिवाइड्स दिस, सो यहां पे दो चीजें, एक तो 80 इज 8 टाइम्स 10, 8 टाइम्स 10, एक अदर वर्ड्स 4a प्लस बी होल क्यूब अपॉन 8 इंटू 10 इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं एक तो, सो वन थिंग इज 8 डिवाइड्स 4a प्लस बी होल क्यूब, and at the same time 10 also divides 4a plus b whole cube. 8 is nothing but 2 cube. So अगर 2 cube इसको डिवाइड करता है, 2 also divides 4a plus b, 2 4a plus b को डिवाइड करता है, और अगर 10 4a plus b को होल क्यूब को डिवाइड करता है तो 10 also divides 4a plus b। अगर 10 4a plus b को के होल क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो 10 4a plus b को भी डिवाइड करता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट अगर 10 इसी नंबर के क्यूब को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज 10 में एक 2 है एक 5 है, 10 में एक 2 है एक 5 है। सो 10 अगर 4a प्लस बी के होल क्यूब को डिवाइड करता है तो 10 विल ऑल्सो डिवाइड a प्लस बी। सो कैन आई से इन दोनों को कमेंट करके 20 डिवाइड्स 4a प्लस बी, 20 divides 4a plus b, 20 divides 4a plus b, in other words 4a plus b by 20 is definitely an integer, 4a plus b is 20k। हमें a और b निकालने की कोशिश कर रहा हूं, 4a plus b is 20k। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, कहना से b is also मल्टीपल ऑफ 4, 4c कर दो। 4a plus b अगर 20k है, या तो दोनों तरफ मॉड 4 ले लो, तो मॉड 4 करेंगे तो b 0 मॉड 4 होगा, b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। या फिर आर्गुमेंट है ये नंबर 4 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब b जो है वो भी 4 का मल्टीपल होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ b इज 4c। b अगर 4c है तो यहाँ पे 4a प्लस 4c इज 20k, a प्लस c इज 5k, a प्लस c इज 5k। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। a प्लस c इज 5k और 5 डिवाइड्स a प्लस c, 5 डिवाइड्स a प्लस c। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इसकी निकालनी है, तो 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 4c स्क्वायर, सो 16c स्क्वायर, तो 16 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, 16 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, एंड द ओनली कंडीशन आई हैव इन टर्म्स ऑफ a एंड c इज 5 डिवाइड्स a प्लस c। a प्लस c इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एंड सबसे छोटा करना है तो a प्लस c को 5 ही ले लो। फॉर स्मॉलेस्ट a प्लस c को 5 ही ले लो। a प्लस c अगर 5 है तो पॉसिबिलिटी क्या है? ये 1 4 2 3, यहां पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 17 हो जाएगा, एंड यहां पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। सो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 16 टाइम्स 13।
16 टाइम्स 13, तो जो भी ये आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 16 टाइम्स 13, ठीक है। तो यहां पर भी बढ़िया कॉन्सेप्ट लगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। तो पहला चीज था कि यार इस जो चीज का है, इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना। 80 था तो 80 की फॉर्म में लिखना था, 80 लिख दिया। तो अपने आप 80 से जब लिखा, ये बढ़िया चीज बन गई, 4a प्लस बी होल क्यूब बन गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, 80 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 80 को हमने स्प्लिट किया 2 क्यूब और सो 2 क्यूब इसको डिवाइड करता है, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, राइट। सो 2 क्यूब इज अ डिवाइजर ऑफ दिस, तो 2 इज आल्सो डिवाइजर ऑफ 4a प्लस बी। 10 is a divisor of 4a plus b whole cube. 10 is a divisor of 4a plus b whole cube. 10 अगर 4a plus b का होल क्यूब का डिवाइजर है, तो 10 4a plus b का भी डिवाइजर, 10 4a plus b का भी डिवाइजर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो 4a plus b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड अच्छा, वैसा तो इससे ये चीज नहीं बन सकती। 4a plus b अगर 2 का मल्टीपल है, 4a plus b 10 का भी मल्टीपल है, 4a plus b अल्टीमेटली 2 और 10 के एलसीएम का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर हम 20 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, 20 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना ये, वैसे तो ये अगर मैं ये बोलूं 4a plus b is the multiple of 2 and is the multiple of 10, then 4a plus b is the multiple of 10, LCM of 2 and 10 होता है। बट 20 भी बोल सकते हैं, ये सोच के मेरे को बताओ कि 20 क्यों बोल सकते हैं। हाउ कैन वी से दैट 4a plus b whole cube is a sorry, if 80 is a divisor of 4a plus b whole cube, then 20 is a divisor of 4a plus b. How can we say this? And this is a very fundamental proof, ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल प्रूफ है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। ठीक है, सो 80 is 2 to the power 4 into 5, 80 is 2 to the power 4 into 5, 2 to the power 4 into 5, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पर एक तो 2 क्यूब है और एक 2 into 5 है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, इसके अंदर ना, इसके अंदर 2 तो होगा ही होगा, तभी ये 2 क्यूब है। 4a plus b के अंदर 2 तो होगा ही होगा, तभी ये मल्टीपल ऑफ 2 है। साथ में इसके अलावा 10 बाहर पड़ा हुआ है, 10 बाहर पड़ा हुआ है, तो बोल सकते हैं कि अगर 10 है और कोई भी पावर नहीं है, तो 10 हैज टू बी डिवाइजर ऑफ 4a plus b ओनली। 10 4a plus b का ही डिवाइजर होगा, अगर क्यूब का डिवाइजर है तो उसके क्यूब रूट का भी डिवाइजर होगा ही होगा, बिकॉज सोच के देखो ना, सोच के देखो कॉन्ट्रडिक्शन से, अगर 10 4a plus b का डिवाइजर नहीं है बट 4a plus b के होल क्यूब का डिवाइजर, so 10 is not a divisor of 4a plus b but it is a divisor of 4a plus b whole cube, then you can easily prove this contradiction, ठीक है। तो यहां पे आई होप 20 वाला स्टेप समझ में आ गया। चलो जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क प्रॉब्लम, मैं हिंट दे देता हूं यहां पे, लेट द ग्रेटेस्ट डिजिट बी एबीसी, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बी एबीसी, एज पर द प्रॉब्लम a into b into c divides the 3 digit number abc। हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट निकालना है, सबसे बड़ा अगर निकालना है तो मैं a को क्या ट्राई करूंगा, a को 9 से ट्राई करूंगा, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 9 से शुरू होगा, ठीक है। सो 9 into b times c divides 900 plus bc, इसका मतलब 9 डिवाइड bc, इसका मतलब b प्लस c इज 9 और 18, जीरो हो नहीं सकता बिकॉज a इंटू बी इंटू सी प्रोडक्ट हो जाएगा। सो b प्लस सी है तो 9 है 18 है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 18 27 36 45 54, ये सब तो हो गई, एक 99 भी हो जाएगी। ये सारी पॉसिबिलिटी चेक करो, अगर इनसे कुछ बनता है सबसे बड़ी वैल्यू तो होगी, अगर नहीं बनता देन ट्राई विद a इज इक्वल टू 8, 8 से ट्राई करो, वो भी नहीं बनता 7 से ट्राई करो, ठीक है। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं दिख गया, हाईएस्ट निकालना है तो वी स्टार्ट विद 9,
ठीक है, हाईएस्ट होगा तो हम दिमाग में ये था ना 9 से शुरू होगा, 9 होगा, नहीं होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी केस नहीं बनता तो 8 से शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, ये तुम खुद से करो एंड इसका आंसर चैट पे लिखो, कमेंट पे लिखो। आई वुड वांट टू सी किस तरीके से, अगर कोई एलिगेंट तरीका लगाया वो भी तुम उसमें लिख सकते हो, सो दैट इट बेनिफिट्स एवरीवन एल्स। ऑल्सो गाइज, फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेवल 5 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, लेवल 5 वीकेंड 14 मई से स्टार्ट हो रहा है, लेवल 6 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, लेवल 7 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। टारगेट आयोक्यम न्यू बैच है जो 9 PM वीकडेज को स्टार्ट हो रहा है 30 अप्रैल से। फुल मैथ मास्टरी 2 मई से स्टार्ट हो रहा है एंड टारगेट ISI for 2027 is going to start from 30th of April. These are all new batches which are starting and तो अगर कोई बच्चा इनमें जाना चाह रहा है तो पुराने वाले बैचेस हैं वो भी ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, बट नए बैचेस के अंदर स्टार्टिंग से शुरू होगा तो उसको ज्वाइन करना प्रेफर करो। ठीक है, ऑल दिस देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द फिलॉसफी इज वेरी सिंपल, इट इज मेकिंग स्टूडेंट्स थिंक। बच्चों को IQ बढ़ाना है, बच्चों को लॉजिक सिखाना है, दैट इज द कोर आइडिया ऑफ ऑल आवर कोर्सेज एंड दिस इज देयर डिपिक्टेड हियर आल्सो। ठीक है जी, so that's it from my side. Hope you've enjoyed and these are the social media channels that you can follow to follow us. Take care, bye everyone, hope you've enjoyed the session. God bless you.